ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम and welcome to all to today's satsang. Hi. And before we begin, would Anuji like to share what insight she got from yesterday's exercise? Arunji, you had given me an exercise to understand that Atma is all-pervading, and to get out of this mind-body conceit. But what I realized was it's going to take time. We understand these concepts, but I think with the manan and with the gyan, slowly it'll kind of seep in. It's there in the intellect, but it hasn't seeped in. So I think that'll take time. Yeah. I'll have to do a lot of reading. I'll have to do a lot of bhakti, manan, gyan, like you said. And I think before it becomes part of me, and where I understand Atma to be separate from this body, is what is I thought and felt. Okay, fair enough. I don't think I gave any mandate to see what Atma is. I said, if you are Atma, then what would be your reaction? But nevertheless, I think you have been honest. No, but this is what, yes, you said you had given that if you are Atma. Yeah. But for us to understand, because being new to this concept and try, imagine yourself, not imagine, we are Atma. Yeah. But Exactly. But to make it part of your everyday existence, I think that'll take some time to seep in. That's what is my honest. Fine. So you are aware of the task at hand. Yes. 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 And I am doing due diligence towards it. Thank you. Anything, Anilji, that you would like to share from yesterday and today? मैं ये कहूँगा आज का दिन अच्छा रहा और मन शांत रहा. वंडरफुल. और मतलब जो काम किया कल जैसे जो मैं कह रहा था कि मन अशांत होने की वजह से जो मुझे करना चाहिए वो भी मैंने नहीं किया. तो आज सुबह को आई टुक एक्शन एंड आई सॉ सम न्यूअर वेज wherein I can be of मतलब जो हम सेवा अच्छी कर सकें. और मन में ये भी ख्याल आया सुबह को which I shared with my brother सुनील भैया आए हुए हैं. Wonderful. कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा काम अच्छा नहीं हुआ और जिसकी वजह से मेरा मन विचलित था, उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्वार्थ बुद्धि काम कर रही थी. Okay. इवन जो मैं कह रहा हूँ कि काम अच्छा नहीं हुआ, तो उसके नीचे अगर मैं एग्जामिन करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा उन्हीं की सोच रहा था. कहीं मेरी वहाँ भी स्वार्थ बुद्धि थी कि अच्छा काम हो तो उसको खुशी होगी तो वो और रेफर करेगा. जो आप हमेशा मेरे को कहते हैं कि ये स्वार्थ बुद्धि नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है टू द ऑर्गेनाइजेशन. कि जब आप काम कर रहे हो तो अच्छी सर्विस देना अपने आप में एक अच्छा गेम है. और उससे अगर अच्छा धर्म है, बिजनेस का धर्म है, और उससे अगर बेनिफिट आता है तो सो बी इट, या वैसा अगर विचार है तो आप ये कहते हैं जो कि फेयर है. लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है कि अगर मैं सच में इसको तल्लीनता से सेवा भाव से करूं और ये नहीं रहे तो ये ज्यादा निर्मल होगा, ऐसा मेरे को लगता है. विचार है, पता नहीं. देखिए, आप सिंस यू आर थिंकिंग you will be able to resolve it for yourself in your own interest, which gives you peace. But my understanding of, within quotes, this game is that
you play full on, and that's it. That's all. The buck stops there. What happens, it is his will, and on your part, everything is transitory. There is no attachment. But game has to be full on. Whether you want money out of it, whether you're doing service or whatever way you want to understand, but you can't compromise on the game. That is how I have understood. So, and I think time and again in Gita we are warned against आसक्ति only. मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि बंदा कह रहा है जी मैं जा रहा हूँ जंगल, मैं भीख मांग के रह लूँगा. वो कहते कैसे चला जाएगा, तेरी ड्यूटी है तो आगे लड़. अब ये टू अ पर्सन नोबडी विल एवर अंडरस्टैंड कि भगवान आगे युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं. बट दैट युद्ध इज लक्षार्थ फॉर डूइंग योर ड्यूटी. ही वॉज अ क्षत्रिय किंग एंड देयर वॉज अ धार्मिक वॉर टू बी फॉट. एंड भगवान सेड मैं तो जब जब धर्म का वो होता है हानि होती है मैं आता हूँ. अब वो आते कैसे हैं, इसी तरह से आते हैं. भी अर्जुन को लाया उन्होंने. और कहते हैं मैं तो शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा. तो दैट इज हिज कमिटमेंट कि भी मैं कुछ नहीं करता. यू नो दैट्स ऑल सिम्बॉलिक इफ यू ट्राई एंड गो डीप इनटू इट. तो आप भी ये मत सोचिए आप कुछ कर रहे हैं. You have been entrusted this task, and whatever the task requires, you have to do. This is how I understand the basic elements of Karma Yoga. रमन जी आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले मैं ही कहूँगा. हाँ जी हाँ जी. जो ये आपने बात कही कि इतने पर ही अगर विचार ठहर जाएं और इसी का अभ्यास होता रहे कि मैं जो है अपना काम पूरी ईमानदारी से 100% गिव करूं, तो ये बहुत ही सुंदर है और प्रभु को अर्पित. बिल्कुल. जो हो वो प्रभु इच्छा. See, the moment you take something out of it ना, ये मेरा है, then everything is gone for a toss. Because वो जो मोह है, जो एक गीता का जो बिगनिंग पॉइंट है, ये मेरे स्वजन है. ये मोह है ना अर्जुन का, मेरे स्वजन है. तो ये जो मेरा काम है, ये मैं इससे मेरे को फ़ायदा हो रहा है, इससे मुझे नुकसान हो रहा है, ये जो जहाँ जहाँ आपका मेरा आ गया ना, वो जो है दैट इज़ द दलदल. यू हैव फॉलन इनटू अ डिच एंड वहाँ से आप नहीं निकाल पाएंगे जो मर्जी आप कर लें. ये तभी निकल पाएंगे तल्लीनता से करें. वॉट एवर इज बेस्ट टू योर कैपेबिलिटी, बट रिमेंबरिंग इट इज गॉड्स विल एंड अर्पित टू गॉड ओनली. मुझे जो मिल रहा है आई एम हैप्पी इन दैट. नहीं मिले तो भी आई एम हैप्पी. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच गीता सेज कि भी जो अपना पका के अपने आप खाएगा, दिस इज 3rd चैप्टर, तो वो चोरी कर रहा है, वो पाप कर रहा है. चोरी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड ही इज़ यूज्ड. तो आप कर रहे हो, इट हैज़ टू गो बैक टू द सोसाइटी बिकॉज सोसाइटी इज गिविंग टू यू, एंड देयरफॉर गिव बैक टू द सोसाइटी मोर देन व्हाट इट गिव्स टू यू. एंड सोसाइटी इज ऑल्सो गॉड. तेरा तुझको अर्पण तो हमारी उसमें है. मैं क्या लागे मेरा, मैं तो कुछ नहीं दे रहा, तूने दिया तुझे वापस कर रहा हूँ. तो विद दैट भाव इफ यू एक्ट, देन वट एवर यू डू यू डोंट हैव टू बी बॉदर्ड. क्योंकि आपने कुछ लिया नहीं, आपने कुछ दिया नहीं, वो करा रहा है. यू आर द मीडियम. ड्यूटी है, कुछ ना कुछ तो करना ही है भाई. आप हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते, और अगर बैठोगे तो भी खाने के लिए मुंह खोलोगे, सोने के लिए लेटोगे और सांस लोगे, वो भी तो क्रिया है ना सब. तो कर्म तो करना ही पड़ेगा. तो जीवन चलाने के लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी. बट
ये मत सोचिए कि इसमें कोई मेरा मैं हूँ, प्रभु ने दिया है, मैं प्रभु का मुझे जो आदेश है वो कर रहा हूँ. दिस इज इन नटशेल हाउ कर्म योग आई हैव अंडरस्टूड. रमन जी आप कुछ कहना चाहेंगे? अनिल जी कुछ और? नहीं बस. रमन जी कुछ आप कहना चाहेंगे? तो एक्चुअली वर्णाश्रम धर्म का पालन मुझे लगता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स समझने के लिए है. एक तो इन जनरल हो गया कि वर्णाश्रम को फॉलो करना, और एक जहाँ ऐसे इंडिविजुअल को लेके चलेंगे जब कि एक जो इंडिविजुअल की यात्रा है या उसका कहाँ पे एवोल्यूशन कहाँ तक हुआ है, अगर उस सेंस में बात करें तो वहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं उनको अपने धर्म के पालन में, या तो वो आई थिंक गुरुदेवी बेस्ट पर्सन होंगे उसको जज करने के लिए और आगे राह दिखाने के लिए. बट इसमें क्या है रमन, आप यू कैन नॉट रश टू गुरुदेव फॉर अ डे टू डे बेसिस. सो एक ब्रॉड गाइडलाइंस तो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी, और ब्रॉड गाइडलाइंस जो गीता में दी हैं, अब आप वर्ण आश्रम धर्म आपने कहा तो आपने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 ही तो वर्ण है ना. तो जो जिस वर्ण में है उसको तो पता है ना मैं किस वर्ण आश्रम का धर्म पालन कर रहा हूँ. अब उस आश्रम में जब उसने कदम रखा है, ये तभी रखा है जब उसे पता है कि यहाँ क्या करना है. अब वो डे टू डे बेसिस पे तो गुरु के पास नहीं पहुँचेगा. वो गुरु के पास तो तभी जाएगा अगर उसे कोई समस्या आ गई हो या कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा हो. ब्रॉड गाइडलाइंस, ब्रॉड कंटूर्स जो हैं उस आश्रम के आपको पता है. ऑल दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. कर्म योग क्या कहता है? कर्म योग कहता है जिस भी आश्रम में आप हैं उस आश्रम के धर्म को आप तल्लीनता से निभाएं और प्रभु को अर्पित कर दें. दैट्स ऑल. इसमें गुरु के पास जाने वाली तब आती है जब आप ऐसा करते हुए भी कोई कन्फ्लिक्ट आ जाए. व्हाट डू यू थिंक रमन? आपकी वॉइस थोड़ा मिस हो गई लास्ट में जो आपने बोला. मैंने कहा अगर आपका इस धर्म को ऐसे फॉलो करने में कोई कन्फ्लिक्ट आता है कभी, देन यू हैव टू गो टू द गुरु टू गेट इट रिजॉल्व कि जी मैं कर रहा हूँ एज पर द डिक्टेट्स ऑफ गीता, बट एक कन्फ्लिक्ट आ गया है. वो तो गुरु को जो बात करी तो मतलब उसी के रिस्पेक्ट में मैंने बोला कि वहाँ पे उनको डाउट हुआ कि अभी मतलब मेरे को ये फॉलो नहीं करना है, मतलब मैं मे बी कुछ अदर पाथ फॉलो करना चाहता हूँ. तो फिर उनके श्री कृष्ण को जैसे लगा होगा कि ये ठीक नहीं है, अभी प्रिपेयर नहीं है अंतःकरण उस लेवल के लिए, अगले लेवल के लिए, या अभी भी स्टिल टेंडेंसीज वैसी हैं जो कि ये करने के बावजूद फिर दोबारा रियकर कर जाएंगी. तो शायद उस सेंस में उस केस के लिए मैंने बोला. हाँ, सो आई एग्री विद यू. आप ये कह रहे हैं कि जिस आश्रम में आप जाना चाह रहे हो उसी के बारे में क्लैरिटी नहीं है. वो अब ये जो है आपने ये अंदाज़ा लगाया, अर्जुन वांटेड टू गो इनटू वानप्रस्थ, मैं जंगल में जा रहा हूँ, ठीक है ना. तो वो एक हमने कहा कि आप जिस आश्रम में हैं उसकी आश्रम की तो आपको ड्यूटीज़ पता है ना. उनमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है उनमें गुरु के पास मुझे नहीं लगता इतनी ज़रूरत है. येस यू आर राइट कि भाई यू कैन पर्सन कैन गो एंड डिस्कस विद गुरु, एम आई राइट रेडी फॉर दिस नेक्स्ट आश्रम और नॉट, and can share ki what is his state of mind. I totally agree with you. हाँ, thank you. That's an important and valid input. चलिए, तो अभी हमने जो है 4 वर्सेस कर लिए हैं, and I hope I am not required to repeat them. So I will read the 5th verse. और अगर आप पिछले आपने रिकॉर्डिंग्स नहीं सुनी है तो kindly do listen to them, so that you have clarity as we go ahead. Okay, the 5th verse goes something like this: यावद् वित्तोपार्जन सक्तः तावन् निज परिवारो रक्तः
पश्चाजीवति जर्जर देहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्कृन करने नहीं रक्षति डुक्कृन करने. Hare Om. So here Bhagwan has said yavat vitto parjan sakta, as long as one is engaged in earning. Now earning can be is laksharth, symbolic of any kind of earning, be it wealth, be it knowledge, be it any earning that you are engaged in. Tavat nij parivaro rakta. So long as you are engaged in that, for that period your parivar is bound to you, raktaha is bound to you, right? Pascha jivati jarjar dehe, and when later on you become old and infirm, jarjar, and you are not able to earn and you are not earning, then in that case vartam kopina prachati gehe, nobody is bothered to speak to you even a word. Prachati, speak, vartam, a word, kopi, na, not a single word, gehe, at home. So at home nobody will bother to talk to you once you are done and dusted with earning. Now this is again we talked that this text is very hard hitting. It's also called moha mudgar. Mudgar is a hammer, so it is giving hammer blows to your moho. Now what is the moho here? That I am earning and I am earning for my family members. Is the moho clear? Anil ji? जी. Or is there any dimension to it? So once you are earning and with the feeling I am earning and I am earning for my family members who are dependent on me, then once you stop earning, then what will happen? You will have expectations that look, I earned for you people when I was young. Now you look after me. Natural expectation or not? Because all my life I lived a life where I am earning and I am earning for my family. Now, this is the bhavna that Bhagwan has presented to us. And time and again we are talking of, he is saying, you have to look for a pratipaksh bhavna, that is an alternative to it, which takes care of this state of affairs. So how do you, and then he is also given a cue. How do you do it? Bhaj Govindam, Govindam Bhaj Mood-mate. 3 Bhaj Govindams: Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga. So how do you see that by working in what manner you can get out of this at the last moment, or rather after you retire? What comes to your mind as an alternate mode of behavior? Raman ji? नारायण, मुझे तो ऐसा लगा कि इन जनरल वो बोल रहे हैं, कोई बहुत स्पेसिफिक ऐसा नहीं है. इंडिकेट ये करना चाह रहे हैं कि अलग अलग लाइफ की स्टेजेस में अलग अलग तरह के रिलेशनशिप्स में उतार चढ़ाव आ सकते हैं. तो अगर बहुत ज़्यादा उसको
एक ही तरीके से स्टबन होके ऐसा एक्सपेक्टेशन रहेगा इवन इन पर्सनल रिलेशंस आल्सो, तो वो फिर बहुत ही हर्ट करेगा एक टाइम पे जाके। या तो मतलब वो क्वाइट नेचुरल भी होगा शायद, चीज़ें जब चेंज होंगी एक अलग अलग लाइफ की स्टेजेस में, तो शायद उसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं भगवान के को उतना ज़्यादा वैसा ना लेके जो गोल है उस पर ज़्यादा फोकस रखेंगे और इसको ट्रांजैक्शनल वे में चीज़ों को थोड़ा सा लेके स्नेहपूर्वक नॉर्मल उसमें, तो चीज़ें ज़्यादा बेटर रहेंगी। तो ये जो टेक्स्ट है इसमें हर एक वर्ष में भगवान ने बहुत ऐसा पिक्चर पेंट करी है जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर रही है, हैं? तो अभी आपने जैसे मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप देख पढ़िए, पहले 4 वर्सेस में भी उन्होंने आपको कहा है आप मूर्ख हो ये कर रहे हो, ठीक है, और इसको ये मूर्खता छोड़ो। और वो ये भी एक मूर्खता है कि आप इस स्टेट में आ गए जब आप अपने आप को डिपेंडेंट फील कर रहे हो और कोई आपसे बात नहीं कर रहा। और ये इन्होंने आज से 1500 वर्ष या 2500 वर्ष जैसे भी उनकी डेट ऑफ बर्थ मानो आप, विच इज़ ऑल्सो डिस्प्यूटेड, इतने 100 वर्ष पहले वो चीज़ लिख दी जो आज हर घर में आपको देखने को मिलती है। और विदेश में तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है कि भाई लोग यही प्लान कर रहे होते हैं, मैं रिटायरमेंट के बाद रहूँगा कहाँ, ओल्ड एज के बाद रहूँगा कहाँ, थिंग्स लाइक दैट। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ उन्होंने करी है। अब उसके वो जो भी मर्जी आप प्लानिंग कर लो, लेकिन जब तक आपका माइंड सेट ठीक नहीं है तो आप तो परेशान रहोगे। और एट द वेरी आउटसेट वी डिस्कस्ड व्हाई आर वी स्टडिंग ऑल दिस टेक्स्ट, व्हाई आर वी डूइंग ऑल दिस सत्संग। उसका जो बेसिक रीज़न है वो ये है, हम आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति के लिए ये पढ़ाई और सत्संग कर रहे हैं। तो अब ये जो हमारी स्थिति हो गई कि हम सारे जीवन भर काम करके अब घर बैठ गए और अब हमसे कोई बात करने वाला भी नहीं है, तो इसमें हमें दुख होगा कि नहीं होगा? और अगर दुख होगा, जो हमें लगता है सबको कि भी होगा, तो हमें किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए था कि इस स्टेज पर आके हमें दुख ना महसूस हो, हमें परमानंद की आनंद ही हो, परमानंद ही हो। ये क्वेश्चन इस तरह से है। हाँ जी अनिल जी। बट अरुण जी, जैसा रमन जी कह रहे हैं, मुझे तो वो ठीक लग रहा है कि भगवान जो कह रहे हैं, और जैसा इन्होंने भी कहा कि भाई हम परिवार में ट्रांजैक्शनल नहीं हो, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें, और जो अपना काम करें, जैसे धन का उपार्जन करना है, अब गृहस्थ आश्रम में है, वो हमारी ड्यूटी है, हम ड्यूटी के भाव से उसको करें और उसको प्रभु को अर्पित कर दें, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और जो ब्रॉडर, बार बार तो भगवान एक ही बात कह रहे हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मति। भाई ये जो है मूर्ता है, तो अगर हम और गहराई से देखेंगे तो करवाने वाले भी वही है, क्योंकि हमारी क्या शक्ति है? मेरे अभी आंख काम करना बंद कर दे, हार्ट काम करना बंद कर दे, मैं तो उसको नहीं चला रहा हूँ साहब, तो चलाने वाले तो प्रभु ही हैं। हम जितना गहराई से इसको समझें, और अगर उतनी गहराई से नहीं भी होता है तो भाई ठीक है, हम अपनी ड्यूटी करने जा रहे हैं, ऑफिस गए, अपना बिजनेस किया, शाम को वापस घर आए, और उसको हम अर्पित कर दें प्रभु को, जो भज 3 कह रहे हैं कि भाई करवाने वाले वही है, हम जो है अपना काम उनकी सेवा के लिए कर रहे हैं। तो बार बार तो वो एक ही बात कह रहे हैं ना, हर जो है कि ये पक्ष दिखा करके कि अरे मूर्ख, तुम इस चक्कर में मत पड़ो कि तुम धन कमा रहे हो, ये तुम्हारे को बुढ़ापे में काम आएगा, ये लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। ऐसा नहीं, कितनी जगह नहीं हो रहा है। उसकी जगह अभी भी अगर प्रभु का ख्याल करोगे
बाद में भी करोगे, गोविंद को भजोगे, तो सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। आई एग्री। सो जो भगवान जो इस सिचुएशन को हमें प्रेजेंट कर रहे हैं, इट इम्प्लाइज द पर्सन हैज नॉट बीन डूइंग इट एंड देयरफॉर ही इज इन दिस सिचुएशन। सो व्हाट यू आर सेइंग इज, इसका सोल्यूशन यही है कि भाई अर्लीस्ट से आप जो है कर्म योग करें। अगर आपकी प्रवृत्ति कर्म योग की है, आपकी प्रवृत्ति भक्ति की है, आप भक्ति योग करें। और आपकी प्रवृत्ति अगर ज्ञान की है तो आप ज्ञान योग के थ्रू करें। इन एनी केस आपको प्रभु से अपने आप को ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ द सोर्स ऑफ परमानंद। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं दृग दृश्य विवेक की एक वो है मंत्र वर्स, सॉरी, just 1 second. I'll just read out. That is verse 20. अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्य अंश पंचकम आद्यात्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततो द्वयम. What this is saying is that asti bhati priyam, these three belong to Brahma, and Nam Roop, they belong to the Jagat. There are 5 things and 5 aspects to everything. So asti bhati priyam is existence, consciousness, bliss, that belongs to Brahma. और नाम रूप जो है वो जगत से लिंक्ड है. तो अगर आपने अपना जीवन नाम रूप के अंतर्गत बिता दिया तो आपकी ये सिचुएशन हो जाएगी. तो आप जो है नाम रूप से ऊपर उठ के अस्ति भाति प्रिय को पकड़ो और बी और सिट इन दैट रिक्वायर्स विड्रॉइंग इनसाइड. अब द फॉर्चुनेट पार्ट इज आवर रिलीजन डज नॉट से कि आप संसार से विड्रॉ कर जाओ. आप गीता पढ़ो तो संसार से विड्रॉ नहीं करा रहे अर्जुन को फॉर सिटिंग इन कंटेम्पलेशन. अस्ति भाति प्रिय के लिए आप उससे ये नहीं कह रहे तो युद्ध करना ही छोड़ दे. आप संसार में रहते हुए भी क्लियर रहो कि ये नाम रूप के खेल में मत पड़ो. आपने अलाइन होना है अस्ति भाति प्रिय से. और यही जो है जब आप रिटायर हो जाते हो, अपना आप एकांत काल में हो, तो आप यू कैन बी सेटल्ड विद इन एंड बी लीड अ वेरी सेटिस्फाइड लाइफ. दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड. अनिल जी यानी बिल्कुल सही. ठीक है जी. सो टाइम हो गया हमारा. वी एंड ऑन. अनु जी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी. अरुण जी एंड अनिल जी, आज का मुझे समझ आया जो आपने बताया कि एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी है, मतलब डोंट एक्सपेक्ट. नाउ व्हाट हैपेंस, हम वी आर स्टिल इन द स्टेज वेयर वी आर रीचिंग आवर रिटायरमेंट, तो हम अभी अपने आप को थोड़ा मोल्ड कर सकते हैं. बट व्हेन आई सी माय पेरेंट्स एंड आई सी माय इन-लॉज, दे आर इन दैट स्टेज where they are feeling exactly the same, that nobody is bothered about them, nobody expects their worth. So at their stage, what should be, how do we, because they have gone past that stage, so how do we deal with that? So Anu ji, ये let me be very clear, आप take the responsibility for yourself, number one. नंबर 2, इट इज़ देखिए हमारे सत्संग है ये, इसके अंदर कोई 8-10 मेंबर्स हैं. कल हम 3 लोग थे. डिस्पाइट द फैक्ट कि ये सब 8-10 मेंबर्स सब ज्ञानी हैं, सब समझते हैं सत्संग की वैल्यू को, लेकिन संसार में इतने ग्रस्त हैं कि यहाँ आने के लिए बहुत मुश्किल है. पहली बात. दूसरी बात ये है कि जिस आश्रम में जो है उस आश्रम का धर्म भज गोविंदम के थ्रू ही करना पड़ेगा.
और वो कभी भी आपके कहने से नहीं करेगा। वो करेगा तब जब वो खुद आके कहे कि भाई मुझे ये सीखना है। और ये कई बार प्रभु की कृपा भी होती है कि भाई कोई आपको आप पकड़ लेता है आपका हाथ और आपको ले आता है, लेकिन ये प्रभु की कृपा भी तभी मैनिफेस्ट होती है जब दूसरा तैयार होता है। ये बिल्कुल आप विश्वास मान के चलिए, अगर आप तैयार नहीं तो जितना मर्जी हाथ पकड़ ले कोई आएगा ही नहीं। 2018 में 19 में मैंने आपसे कहा था गीता क्लास में आ जाओ जस्ट टू इलस्ट्रेट माई पॉइंट। हाँ जी अनिल, मैं अपना व्यू रखूं? हाँ जी बिल्कुल। मुझे लगता है अनु जी जो है प्यार करती हैं अपने इन-लॉज और पेरेंट्स के साथ, और वो चाहती हैं कि वो उनकी जो एक्सपेक्टेशन से उनको जो तकलीफ हो रही है वो उनकी तकलीफ दूर हो। तो एज ए डॉटर और एज ए डॉटर इन लॉ आपके मन में ये अच्छा धर्म के अनुरूप भाव आ रहा है, और उसमें जो है आप जैसे अगर उनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप उनके साथ टाइम बिताओ, तो आप जितना भी बिता पा रहे हैं उसको अगर आप थोड़ा और कर सकते हो या उनको हेल्प करने में मतलब एक और प्रयास किया जा सकता है। बाकी जो अरुण जी ने कहा है तो ये प्रभु कृपा की कब आदमी ये करता है आकर के भी, और मैं अपने को भी देखता हूँ कई बार हम कितनी अच्छी चीजें सोचते हैं लेकिन फिर इम्प्लीमेंटेशन में फॉल्टर कर जाते हैं। तो हम अगर अपनी ड्यूटी करते चलें, अपना वो करते चलें, आपके मन में भी सुंदर भाव आ रहा है और ये विचार आया है, ऐसा भाव आया है तो कुछ अच्छा ही होगा। बिल्कुल ठीक। अनिल जी जो है बहुत शुद्ध आत्मा है, मैं दुष्ट आत्मा हूँ थोड़ा। नहीं जी, ऐसा मत करें। आप भी सही कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ आप सही कह रहे हैं। मैं पाठ पढ़ाता हूँ अनसेल्फिशनेस का, करेक्ट सेल्फिश करता हूँ, और ये मेरा वो ये है अनुभव कि अब आपने अनिल जी ने कह भी दिया, डॉटर इन लॉ हूँ, मदर इन लॉ हैं, रिलेशनशिप्स क्रिएट कर दी, और वो भगवान ने गीता में सबसे पहले रिलेशनशिप को ही प्रहार करा है। तो आप जो है मेरे अपने जैसे मैं कहा मैं दुष्ट आदमी हूँ थोड़ा, तो आप ये कभी गलती मत कर बैठना ये सोच के कि आप कुछ कर सकते हैं। हमारी सारी लर्निंग, हमारी सारी प्रभु की जो गाइडेंस है वो ये है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। केवल एक चीज़ है, जो आपकी ड्यूटी है जैसे भी है, चाहे मदर की तरह है, चाहे डॉटर की तरह है, चाहे डॉटर इन लॉ की तरह है, उतने तक मैं सहमत हूँ। यू डू योर ड्यूटी बट नेवर थिंक यू आर डूइंग एनीथिंग। प्रभु करा रहे हैं और ये उनका भाग्य है कि वो कैसे ले रहे हैं। दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड, दैट ऑल्सो आई कैन टेल यू। वॉट एवर यू डू वो उसमें फिर भी कमियाँ निकालेंगे, विच विल मेक यू फील कि यार मैं तो ना आपको वो फीलिंग आनी चाहिए कि मेरा करा बेकार है, और वो क्या कर रहे हैं उसके ऊपर तो बिल्कुल आप वो ना करें। वो प्रभु की मर्जी है, वो कैसे भी करें। आपने जो कर दिया, बी वेरी सेटिस्फाइड, फ्री ऑफ गिल्ट, और प्रभु को अर्पित करते रहो। जितना मेरे पास समय है, जो उन्होंने कराया मैंने कर दिया। आई थिंक more than that doesn't come to my mind, and I endorse Anil ji because as I said he's a pious soul. Okay. मैं भी जो अरुण जी ने ये कहा कि भाई करने कराने वाले परमात्मा हैं, तो मैं उनसे अलग नहीं कह रहा हूँ। वो विचार आ रहा है, वो रास्ता दिखाएंगे, आप सजग रहिए। बहुत सुंदर। I am saying the closing prayer. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। May God's blessing be with all of us. May we reach our destination with His blessings. Hari Om. Thank you very much, all of you. हरिओम। हरि ओम नारायण हरि ओम।